Good afternoon, Poonam ma'am. Am I audible? Good afternoon, Dr. Vishal. Yes, you are audible. Okay, so shall we start, ma'am? Yes, I think it's already 3:05. Yeah. Okay. Please go So, ahead. okay. A very good afternoon to all the participants and the resource person. I, Dr. Vishal Chauhan, coordinator of this session, welcome you all on behalf of the Delhi University, Dean Student Welfare, and the Institute of Lifelong Learning. This is our guidance cum orientation program by the University of Delhi for undergraduate aspirants. We would like to start the session by playing a recorded message from our Honorary Vice Chancellor of the Delhi University, Professor Yogesh Singh. May I request Pankaj to please share the video. दिल्ली विश्वविद्यालय की तरफ से इस काउंसलिंग सेशन में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा डीन स्टूडेंट वेलफेयर और IIL इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग, जिन दोनों ने मिलकर ये तय किया कि ये एक ओरिएंटेशन और काउंसलिंग सेशन का आयोजन किया जाए। मन में ये था क्योंकि ये जो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है ये पहली बार हो रहा है। इसमें किस तरह का एग्जाम आएगा, किस तरह के क्वेश्चंस होंगे, ऑब्जेक्टिव है तो कहां पर फोकस करना है, ऐसे बहुत सारे प्रश्न बच्चों के मन में स्वाभाविक रूप से होंगे। तो उन लोगों ने दिल्ली विश्वविद्यालय की तरफ से सोचा कि एक इस तरह का सेशन आयोजित किया जाए और विशेषकर इसमें फोकस उन बच्चों का रखा जाए जो कि SC/ST कैटेगरी से आते हैं। कई सालों का ऐसा अनुभव भी आया कि कई बार SC/ST की सीट्स खाली भी रह जाती है। कोई भी सीट खाली रहे किसी भी विश्वविद्यालय के लिए चिंता की बात है, और अगर SC/ST की सीट खाली रहती है तो और भी चिंता का कारण है। इस सबको ध्यान में रखते हुए और पहली बार हमने ये स्टेप जो लिया है और ये विद्यार्थियों के हित में है, हम सबको ठीक से गाइडेंस लेनी चाहिए, ठीक से फिर पढ़ना चाहिए ताकि अच्छे कॉलेज में एक आपकी इच्छा के अनुसार कोर्स में एडमिशन हो। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का इम्प्लीमेंटेशन चल रहा है, नए नए उसमें आयाम जोड़ रहे हैं और जो टेस्ट के माध्यम से आएंगे सारे देश के बच्चे अपने अपने हिसाब से तैयारी करके आएंगे, तो हमको बहुत सिंसियरली इसको पढ़ना भी चाहिए। मैं आज उस बात पे नहीं कह रहा कि जो पहले हमारी पद्धति थी CUET से पहले की, उसमें कुछ खामियां थी या नहीं थी, लेकिन आज जब देश ने तय किया है कि CUET से होगा, हम सबको उसके हिसाब से अपने को ढालना है और ये जो काउंसलिंग और ओरिएंटेशन प्रोग्राम है उस ढालने की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। मैं आप सबको बहुत सारी बधाई देता हूं, ढेर सारी शुभकामनाएं। आप दिल्ली विश्वविद्यालय में अच्छा स्कोर लेकर एडमिशन लीजिए। दिल्ली विश्वविद्यालय में आपका स्वागत है। Thank you, Pankaj Bhaiya. It was indeed been an inspiring message from our Honorary VC sir. The University of Delhi is one of the most sorted of learning institutions. And today, we are here to discuss about 3 different disciplines: commerce, business economics, and history. For the first session, I would like to invite and introduce Dr. Poonam Sethi, Associate Professor in the Department of Commerce, Hindu College. Dr. Poonam Sethi is currently an Associate Professor at Hindu College in the Department of Commerce. She joined the college in 1994. She completed her schooling from Delhi Public School, Mathura Road, and graduated from Shri Venkateshwara College. She was a gold medalist. She completed her post-graduation, MPhil and PhD from the Department of Commerce, Delhi School of Economics, University of Delhi. She is also a UGC NET qualified and JRF holder. Her teaching experience includes her expertise in handling diverse subjects like microeconomics, macroeconomics, business mathematics, business statistics, human resource management, Indian economy, business law, auditing and corporate governance, to name a few. Her MPhil research dealt with the banking sector reforms in India in the post-liberalization era
Her PhD on the topic Selected Aspects of Corporate Governance with Respect to Shareholder Participation was awarded in 2008. She has several publications to her credit, including research papers and chapters in edited books. She has also presented papers at international and national conferences. She is on the editorial board of the Journal of Global Research Foundation for Corporate Government, titled Corporate Governance Insight. She is currently on the panel of supervisors to guide PhD MPhil research students of Delhi University. She has been on numerous committees constituted by the Department of Commerce, Delhi School of Economics, and the Hindu College. So, without further ado, I welcome Dr. Poonam Sethi. Over to you, ma'am. Thank you, Dr. Vishal. Unfortunately, there is a glitch at my end today. We don't have electricity here, and I'm trying my best to present my PPT, which I'm going to share in a while. I hope I'm audible. There is no lag. I mean, that's the There is minimum. none, ma'am. You are loud and clear, ma'am. Oh, thank you so much, because I was really worried. This had to happen now. And I've just received a message from TPDDL saying that it's a 120 minutes power outage. So my entire session will go like that probably. So Okay, without further ado, and thank you, Vishal, for all those kind words. I would like to welcome every student, every participant who's joined us today for this session. And of course, I would like to thank ILLL and DSW for this initiative. I would like to now share my PPT, and let me see. My screen is visible. yes, ma'am, it is. So here we are on the very first slide. As you can see, this is the counseling session for CUET 2022 for business economics or oblique economics, either of the two, with the subject code of 309. So many of you must have been attending the sessions earlier also, but we keep reiterating what is important. The mode of the exam is CBT, that is computer-based. The duration of the exam is 45 minutes for this particular paper, domain subject. The type of questions are MCQs, and the total number of questions that would be asked would be 50, and out of which you have to attempt 40. And the marks per question are 5, and 1 mark will be deducted for a wrong answer. And in fact, if any one of you visited the NTA site for mock tests, you will get to see the entire scheme of examination. The question palette is there, and it gives you the entire overview of how you have to go ahead. And if you haven't, then please do visit the NTA site for mock examinations, because if you would be spending as much time to understand the instructions on the spot, it may be a little confusing. So I'd suggest that uh, you see the entire details in advance in order to cut down on your confusion as well as on your time. And the unanswered marked for review will be given no marks, of course. So hence you can calculate 40 into 5, 200 marks paper. And many of the resource persons have been emphasizing on the way you should proceed in your paper. Avoid hit and trial, because you already know that there is negative marking. And the question palette will, of course, help you to come back later when you have time. And please try to attempt serial wise, because there would be case study questions which would
run over several questions. So if you are jumping from one question to the other, you might just skip. Although they repeat the content in every question, but then there is a chance that one of the question might get missed. So in order to avoid that, preferably move serial wise. So next that we have to look at is the syllabus. So if you can see, this syllabus has been downloaded from the site of cuet.samarth.ac.in, and all subject syllabus is available. And in fact, if I can attempt that, let me see if I can uh, show you. That's the syllabus. If you can see the Common University Entrance Test, that is the CUET Samarth portal. And you can see that all the subjects have been listed here, and you can go and see the syllabus of your own subject. So coming back, you can see on your screens, well, the course content of economics is divided into three broad categories, and 10 units have been specified in the syllabus. Out of those 10 units, the first 2 units relate to microeconomics. And this is the slide that actually is showing what is going to be asked in the examination. So you can see Unit 1 talks about microeconomics, which is the introductory, the introductory chapter of microeconomics that you must go through. And especially, I would reiterate, as earlier resource persons must also have been mentioning, that you must go through the NCERT textbooks very carefully, because the entire subject content has been lifted. I mean, the syllabus content has been lifted from the NCERT books. And the second, and of course, within this, the definition of microeconomics, and there could be other related aspects that might get asked. And then you have the central problems. So we are aware of the central problems, and any question which relates to those, can be asked in the examination. So this is, uh, if I can, in fact, you can also, these are also available. The textbooks are also available in the digital format, which you can pick up from ncert.nic.in. And just a minute. So within this, you will also get to study the centrally planned economy, the market economy, the difference between microeconomics and macroeconomics. That's the very first chapter that you must have studied at +2 level in microeconomics. The second chapter is consumer behavior and demand. And you can clearly see that the entire content that you studied under consumer behavior has been clubbed under this head. So as you can see in the sequence, of course, it's the consumer equilibrium, which would be attained through the utility approach, 1 and 2 commodity cases. And similarly, you will also have to uh, study demand, as in market demand, the determinants of demand, demand schedule, demand curve, movement along and shift in the demand curve, price elasticity of demand, measurement of price elasticity of demand. And within this, you will have to study the methods as well, the percentage, the total expenditure, and the geometric methods. In fact, they are all vividly given in the NCERT books. Other than that, you can look at some of the other sources which I would be mentioning after I discuss the syllabus. So that's about the microeconomics part. Then is the second slot, that is of macroeconomics. So you can clearly see national income and related aggregates, basic concepts and measurement. Within this, of course, the content apparently may show only 3 heads, that is the macroeconomics uh, meaning, uh, and the circular flow of income, the concepts of GDP, GNP, NDP, NNP,
And of course, you may not really get questions because they can they need more than a minute or so for calculation. So you may actually be asked questions which would test your understanding of the topics. So this is then the measurement of the national income by all the three methods: value added method, income method, and expenditure method. And the best part of the entire this examination is that the content has already been covered by you at the +2 level. So there is nothing that can come from that will be asked from beyond that sphere. So you need to be comfortable. So I hope if I'm just using English as my communication method, it's okay, or do I need to switch between English and Hindi? Yes, ma'am. If you can do bilingually, that would be great, So ma'am. anyway, तो हम बीच बीच में कोशिश करते हैं हम इसको इंग्लिश हिंदी करने का, बट मे बी द टर्म्स आई मे नॉट बी एबल टू सप्लाई यू विद द हिंदी टर्मिनोलॉजी. सो जो यूनिट 4 है हम देख रहे हैं उसमें डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट है, और उसका कवरेज भी काफ़ी एक्सटेंसिव है. इनफैक्ट आप सिलेबस को देखेंगे तो मैक्सिमम जो कॉन्सेंट्रेशन है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का है. And I was checking the content given by NTA and the content of the NCRT book. It is a virtual overlap. मतलब बिल्कुल जो आपकी NCRT की किताब में है वही सिलेबस NTA ने दे रखा है, which at least assures you of one thing कि आप अगर अपनी NCRT की बुक को अच्छी तरह करेंगे तो आप काफ़ी हद तक सक्षम हो जाएंगे इस पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए. और ये यूनिट 4 आप देख सकते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट है. इसमें सब चीज़ें आपको कवर करनी है, आपको इसमें कुछ भी छोड़ना नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एकदम ओवरलैप है. मूविंग ऑन, फर्दरमोर, मनी एंड बैंकिंग, गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट्स. तो आप देख सकते हैं कि सारा कुछ जो आपने +2 लेवल पे किया वही सब अभी भी आपसे पूछा जाएगा. तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. कोई रॉकेट साइंस नहीं रहेगी इसमें कि आपसे कुछ अलग पूछ लिया जाएगा. लेकिन हाँ, आपको जो आपका टेस्ट होगा इसमें वो होगा आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नॉलेज. कि अब जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको मैं बताऊंगी कि किस तरह से, जैसे कुछ चीज़ें आपको बाय द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन आपको आइडेंटिफाई करनी होंगी. तो कई सारे लुक अलाइक होते हैं आंसर्स, बट आपको जो सबसे करेक्ट होगा उसको कैसे चुनना है. तो ये हुई सिलेबस की बात, और इसका लास्ट पार्ट मैं आपको दिखा देती हूँ. ये है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट. तो इसके भी 3 यूनिट्स हैं जिसमें आपका डेवलपमेंटल एक्सपीरियंस एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 91 जो आपने कवर करना है फ्रॉम 1947 टू 1990. और उसके बाद के जो लिबरलाइजेशन का जो फेज़ है वो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में भी आपको बात करना है, जिसे हम शॉर्टकट में कई बार LPG कहते हैं. उसके बाद ये करंट चैलेंजेस फेसिंग द इंडियन इकोनॉमी. सो ये अपने आप में बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स हैं जब आप NCRT की बुक से देखेंगे. जैसे कि हम पावर्टी की बात करें, हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की बात करते हैं, हम रूरल डेवलपमेंट की बात करते हैं, एम्प्लॉयमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसीज़, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, रिसोर्सेज, एनवायरनमेंट, ये सब आपने पहले से ही पढ़ा हुआ है. आपको इसको ज़रा दोबारा से अच्छे से रिवाइज करना है. और ये आप लास्ट जो है यूनिट 10, ये है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया. इसमें कंपैरिजन है नेबर्स के साथ, इंडिया एंड पाकिस्तान एंड इंडिया एंड चाइना. तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं
और लास्ट में है इश्यूज इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉपुलेशन, सेक्टोरल डेवलपमेंट एंड अदर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इंडिकेटर्स। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स, सॉरी। सो ये हुई सिलेबस की बात, और ये मैंने आपको बताया कि ये आप समर्थ की साइट से ले सकते हैं। अब आती है कि कहाँ कहाँ से आप पढ़ सकते हैं, कहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो एक तो अब मॉक टेस्ट जो हैं वो अवेलेबल हो गए हैं, जिसका ये डायरेक्ट लिंक भी है, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, और मैं भी आपको दिखा सकती हूँ कि ये एनटीए की साइट से आप इस पे पहुँचते हैं। अगर आप वो उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप इस पे पहुँचते हैं, और ये 6 सर्वर्स हैं। आप किसी भी सर्वर से जुड़कर अपना मॉक टेस्ट दे सकते हैं। सब में आइडेंटिकल मॉक टेस्ट दिए गए हैं, तो आप कोई भी चुनकर अपना शुरू कर सकते हैं। और जैसे कि मैं कोशिश करती हूँ, अगर मेरा इंटरनेट सपोर्ट करता है तो इसमें आपको करना है ये सिलेक्ट वन CUET। इसमें अभी आप फ़िलहाल ऑल ही सिलेक्ट कर रहे हैं, और पेपर सब्जेक्ट है यहाँ पर है। आप देख सकते हैं सारे सब्जेक्ट्स हैं, आपको जिसका भी करना है आप उसका करिए। ये इकोनॉमिक्स का हो गया, एंड देन ये सिर्फ इंग्लिश में अवेलेबल है। और इस तरह से हम जा सकते हैं प्रैक्टिस के लिए मॉक टेस्ट पे। ये इसमें ये आपका क्वेश्चन पैलेट का जो कलर्स हैं वो इस तरह के रहेंगे, और ये पूरी डिटेल्स इसमें दी गई है, और हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। और अगर हम प्रोसीड करेंगे तो हम ये एनटीए के मॉक टेस्ट पे, ये लाइव मॉक टेस्ट है इस वक्त। तो आप देख सकते हैं कि हम इसमें क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इस पे हम फिर दोबारा से वापस बाद में आते हैं। तो ये आप देखिए, सोर्सेज ऑफ स्टडी एंड प्रैक्टिस। मॉक टेस्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया। उसके अलावा cbseacademic.nic.in, इस पर भी आप जाकर तमाम स्टडी मटेरियल देख सकते हैं, और कुछ टेस्ट्स भी ये कंडक्ट करते हैं। आप उन पे जाकर इनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। और diksha.gov.in जो है gov.in, ये एक बहुत ही आई वुड से वेरी हाई क्वालिटी साइट है। अगर आप इस पे जाएं, आपको इस पे वीडियोस मिलेंगे, आपको इस पे रिटन डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे। आप सब, जैसे आपको कोई चीज़, अब मैं ये तो नहीं कह पाऊंगी कि आप सारा कुछ बैठ के आराम से अब वीडियोस देखिए, लेकिन अगर आपको कोई एक कॉन्सेप्ट है जिसकी क्लैरिटी नहीं हो रही है अपनी एनसीईआरटी की बुक पढ़ने के बाद, या जब आप मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आप उसका आंसर इजीली नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि आप इस तरह की साइट्स पे जाएं जहां पर बहुत ही अच्छी वीडियोस अपलोडेड हैं। आपको समझाया जाता है विद ग्राफिक्स, विद कंटेंट, और बैकग्राउंड में पूरी सब कुछ रिटन मटेरियल भी आता रहता है। और एक मैम है, जैसे वो पढ़ाती हैं तो आपको बिल्कुल क्लास का फील आएगा उसका। और एनसीईआरटी की बुक्स हैं जो कि डिजिटल भी हैं, और अगर आपने अपनी 12th में ख़रीदी होंगी तो बहुत ही अच्छी बात है, तो वो तो आपके पास होंगी। बट जस्ट इन केस आपने नहीं ख़रीदी थी तो आप उनका डिजिटल वर्जन ले सकते हैं ncert.nic.in पे जाके। ये भी मैं आपको दिखा सकती हूँ, मैंने कोशिश तो करी थी इसको खोल के रखने की। हाँ, ये है इसका साइट, ये आप देख सकते हैं ncert.nic.in टेक्स्ट बुक। और यहाँ पर आप जो अपना देख सकते हैं ये क्लास 12th है, कुछ कंबाइंड भी हो सकती हैं, और ये आपको यहाँ सब्जेक्ट लेना है। समहाउ मेरा सब्जेक्ट दिख नहीं रहा है, और बुक टाइटल वगैरह ये सब आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। इनफैक्ट मैंने काफ़ी देर उस पर देखा था, लेकिन अभी उसके अलावा neos.ac.in है, swem.gov.in है, जो स्कूल की कैटेगरी में आपको काफ़ी कंटेंट उस पर मिलेगा।
ई पाठशाला है जिसका लिंक है epathshala.nic.in। तो ये सब सोर्सेज अपने आप में बहुत अच्छे सोर्सेज हैं, और अगर आप अपना समय लगाकर इन सबको देख सकें, सबसे पहले मैं कहूँगी एनसीईआरटी बुक्स, उसके बाद फर्दर क्लैरिटी लेने के लिए आप इनमें से किसी भी, जिस भी साइट के साथ आपको कंफर्ट महसूस होता है, आप उस पर जाइए, पढ़िए, और साथ में मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करिए। तो मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते हुए आपको ये समझ आ जाएगा कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो कितनी क्लियर हो रही है कॉन्सेप्ट्स को लेके। तो ये हुई स्टडी और प्रैक्टिस की बात। इसके बाद हम आते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस। तो मॉक टेस्ट अगर आप में से किसी ने अटेम्प्ट कर लिए हैं या आप ऑलरेडी उस साइट पे जा चुके हैं, तो आप देख चुके होंगे कि इस तरह के 5 क्वेश्चंस हैं जो मैंने जब पूरा मॉक टेस्ट एक अटेम्प्ट करके देखा, तो ये सारे उसके अंदर टाइप्स के क्वेश्चंस दिखे। फिल इन दी ब्लैंक्स है कि आपको कोई कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं और आपको वो ब्लैंक में भरना है। काफ़ी आइडेंटिकल हो सकते हैं और आपके लिए दिक्कत भी हो सकती है जब तक कि आपकी नॉलेज बिल्कुल क्लियर ना हो उस चीज़ को लेके। हाँ, तो ये मटेरियल तो हिंदी के विद्यार्थियों के लिए भी बाकायदा उतना ही यूज़फुल है, और कुछ साइट्स में तो हिंदी में भी आपको मिलेगा मटेरियल। उसके बाद जो दूसरा वेरिएशन क्वेश्चंस का है वो है मैच द फॉलोइंग, यानी कि आपको 2 पार्ट्स में, एक कॉलम 1 है, कॉलम 2 है, और उसमें आपको मैचिंग करनी है। ऑल्दो मैचिंग का जो क्वेश्चन होगा वो अनरिलेटेड पार्ट्स नहीं उसमें डाले जाते हैं, वो ऐसे ही डाले जाएंगे जो एक ही टॉपिक को रिलेट कर रहे होंगे, ताकि आपका थोड़ा कंफ्यूजन बढ़े। लेकिन घबराइए नहीं, अगर आपने पढ़ रखा होगा तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये मैच द फॉलोइंग है। तीसरा मैंने देखा कि उसमें क्रोनोलॉजी का ऑर्डर है। ये आपको मैं कहूँगी कि जब आप क्रोनोलॉजी का क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, तो ये ऐसा नहीं है कि आपको किसी एक पर्टिकुलर चैप्टर में मिलेगा। ये आपकी ओवरऑल नॉलेज, जैसे आप एक लंबे समय से इकोनॉमिक्स को पढ़ रहे हैं, तो अलग अलग चैप्टर्स में कुछ कुछ कंटेंट आपने देखा होगा, यू मस्ट हैव कम अक्रॉस, चाहे वो इंडियन इकोनॉमी का हो सकता है, फिर कुछ और चीज़ हो सकती है, कोई डेवलपमेंट हो सकती है नेबरिंग कंट्री में कहीं पर। तो उसका एक क्रोनोलॉजी का ऑर्डर होगा। क्रोनोलॉजी का ऑर्डर होता है कि किस साल में, या वो आप किस ऑर्डर में उन चीज़ों को लगाओगे। तो वो हो जाते हैं क्रोनोलॉजी के क्वेश्चंस। नरेश, क्वेश्चन मैं वैसे बाद में ले लूंगी, लेकिन इमेज के क्वेश्चंस कहीं पर भी नहीं है मॉक टेस्ट में। Ma'am, can I say this? Sorry to interrupt in between. I wrote in the chat box as well that we will be entertaining all the questions after both the sessions. तो जैसे कि मैंने चैट बॉक्स में भी लिखा है कि सारे ही क्वेश्चंस को हम बात करेंगे, और पर वो दोनों सेशंस होने के बाद। तो आप कृपया करके अपने प्रश्न जो हैं वो चैट बॉक्स में रख दें, और मैं इंश्योर करूंगा कि आपके जो सारे प्रश्न हैं, जो आपकी सारी क्वेरीज हैं, उनका आंसर सिलसिलेवार ढंग से दिया जा सके। धन्यवाद। थैंक यू। प्लीज कंटिन्यू मैम। सॉरी टू इंटरप्ट यू मैम। नहीं, वो मुझे भी कई बार, एक्चुअली मैंने 2 जगह से ज्वाइन किया हुआ है, तो मुझे कई बार वो चैट देखती हूँ तो मुझे लगता है मैं सवाल आया तो मैं जवाब दे दूँ। तो एनीवेज वो टीचर मेंटालिटी हो जाती है। तो लेट्स लुक एट दी 4th variety of question, that is the statement question. सो स्टेटमेंट क्वेश्चन है कि आपको कोई 2 स्टेटमेंट्स दी जाएंगी और उनसे रिलेटेड आपसे कुछ पूछा जाएगा। अब वो स्टेटमेंट के क्वेश्चंस हम देखेंगे, इसमें कुछ ज़्यादा डिस्कस करने वाला नहीं है। और जो 5th वेरिएशन है वो होगा पैसेज या केस बेस्ड। आपको कुछ केस दे दिया जाएगा और उस पे बेस्ड करीब 4 या 5 क्वेश्चंस होंगे। और जैसा कि मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि जब आप जंपिंग करेंगे ना क्वेश्चंस पर, तो इट कैन बी डेंजरस।
आप कुछ क्वेश्चन को मिस कर सकते हैं, क्योंकि ये केस बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं वो 5 क्वेश्चंस का एक क्लब होता है। तो मेरा सजेशन है कि आप सीरियल वाइज ही चलें। तो दिस इज अबाउट दी। तो मैं अब आपको जो दिखाऊंगी वो बेसिकली क्वेश्चंस के सैम्पल्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे, और ये मैंने बिल्कुल आप मॉक टेस्ट से ही उठाए हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप देखें, इफ डिमांड इंक्रीजेस एंड सप्लाई डिक्रीजेस द प्राइस विल राइज शार्पली, फॉल शार्पली, राइज मॉडरेटली, रिमेन्स कांस्टेंट। तो अब नॉर्मल कोर्स में तो क्या होता है, जब डिमांड इंक्रीज करेगी तो प्राइस की टेंडेंसी क्या होगी, राइज करने की। लेकिन इसमें साइमल्टेनियसली जो वो एक बात कह रहे हैं वो है कि सप्लाई भी डिक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब है कि प्राइस के ऊपर डबल इम्पैक्ट आ रहा है, इधर से डिमांड बढ़ रही है लेकिन सप्लाई कम हो रही है। तो जो प्राइस है वो इट विल राइज शार्पली, राइट, इट विल राइज शार्पली। तो ये आपको इसका आंसर उस तरह से चुनना पड़ेगा कि वो हम उसको फॉल शार्पली, राइज मॉडरेटली, रिमेन्स कांस्टेंट, कांस्टेंट तो रहने का कोई मतलब ही नहीं है, और मॉडरेट राइज भी नहीं होगा, क्योंकि वो सिर्फ तब होता जब खाली डिमांड बढ़ रही होती, और डिपेंडिंग अपॉन इलास्टिसिटी, आई मीन काफ़ी सारी उसमें चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है कि सप्लाई भी चूंकि एकदम साथ साथ ही कम हो रही है और डिमांड बढ़ रही है, तो उसका जो प्राइस है वो शूट करेगा। तो हमारा आंसर जो इसमें होगा वो होगा ए। तो हम उसको चूज करेंगे, और क्वेश्चन पैलेट में जाके अगर आप देखें उस क्वेश्चन में हमको, अगर आप श्योर हैं तो आप अपना आंसर सेव करिए और नेक्स्ट पे मूव कर जाइए, एल्स आप उस क्वेश्चन को रिव्यू पे भी डाल सकते हैं कि अगर आप दोबारा उस पर वापस आना चाहें। क्वेश्चन नंबर 2, India's health infrastructure is made up of 3-tier system: primary, secondary and tertiary. The Indian systems of medicine does not include. तो आप बहुत ध्यान से देखेंगे, जल्दबाजी ना रखें। आपको जो टाइम दिया जा रहा है 45 मिनट, और 40 क्वेश्चन आपको करने हैं, विच मीन्स कि आपके पास आराम से 1 मिनट तो है हर क्वेश्चन को करने के लिए। तो आप बाकायदा क्वेश्चन को आराम से पढ़ेंगे, बिल्कुल भी जल्दबाजी में नहीं पढ़ेंगे। अब इसके ऑप्शंस हम देख रहे हैं, नेचुरोपैथी, एलोपैथी, यूनानी एंड सिद्ध। तो अगर आपने एनसीईआरटी की भी बुक पढ़ी हो तो उसके अंदर बहुत अच्छे से ये डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि इंडियन मेडिसिन सिस्टम का। तो हमारा चॉइस जो इसमें ऑटोमेटिक होता है, क्योंकि नेचुरोपैथी हमारी कंट्री तो जानी जाती है नेचुरोपैथी के लिए, यूनानी दवाइयों के लिए, और सिद्ध मेडिसिन सिस्टम के लिए। तो एलोपैथी जो है ये हमारे कंट्री की देन नहीं है, ये दूसरे देशों से, या कह लो कि ये वेस्ट की पद्धति है ट्रीटमेंट की। तो इस हमारा जो आंसर होगा वो होगा एलोपैथी। तो ये तो बड़े सिंपल टाइप के क्वेश्चंस हैं कि आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं, आपको चूज करना है और आपको आगे बढ़ना है। दीज आर द स्टैंडर्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये जो मैंने आपको बताया था मैच द फॉलोइंग वाला जो कॉन्सेप्ट होता है, तो मैच द 2 सेट्स ऑफ पेयर्स, और आपको उसकी पेयरिंग करनी है। सो इसके अंदर है लैंड सीलिंग, लैंड रिफॉर्म्स, ग्रीन रेवोल्यूशन, मार्केटेड सरप्लस, और कॉलम 2 में आपको कुछ और डेवलपमेंट्स दी हुई हैं। तो आपको इनको, तो एक तो तरीका ये होता है इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का कि जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छे से पता है आप पहले तो वो आइडेंटिफाई कर लो, और फिर आप जैसे आप इतने सारे जो कॉम्बिनेशंस आपको दिए होते हैं, तो अगर आपको मान लीजिए ये पता है कि डी तो है जो 4 है, मैं इस वाले का एग्जांपल लेके बताती हूँ कि डी तो है वो 4 है, दैट इज टैक्सेशन, बोरोइंग्स, प्रिंटिंग मनी, यस दिस इज डेफिसिट फाइनेंसिंग, आपको पक्का पता है। तो आप ये कर सकते हैं कि आप अपना पहले ही जीरो इन कर लें कि आपको अब इन 2 में से अपना आंसर चुनना है, क्योंकि D4 तो आपका करेक्ट है। अब उसके बाद आप देखिए कि आपको और कौन सा नेक्स्ट है जो
ठीक से आता है। तो मान लीजिए मैं कहती हूँ कि मुझे ये याद आता है कि फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स इज प्राइमरी डेफिसिट। हाँ, ये मुझे ध्यान आ रहा है कि ये प्राइमरी डेफिसिट है, यानी कि सी के साथ 2 आना चाहिए। तो एक तो मेरे को यहाँ पर मुझे देखने के बाद ये तो क्लियरली समझ में आ रहा है कि इनमें से भी ये वाला अब एलिमिनेट होता हुआ दिख रहा है, लेकिन जस्ट टू बी डबली श्योर हम बाकी के ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। तो कई बार तो आपको सारे ही आते होंगे, मैं ये नहीं कहती कि आपको 2 ही आते होंगे, लेकिन कभी ये भी हो सकता है कि आपको 2 ही आते हो, 3 ना आते हो। तो आप इस तरह से प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन से भी अपने करेक्ट आंसर पे पहुंच सकते हैं। तो इस केस में यहाँ पर आते हैं हम तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। तो आप देख सकते हैं लैंड सीलिंग was about fixing the maximum limit of land holding for an individual. Land reforms थे change in the ownership of land to tillers, वो process था जिसमें सारी abolition हुआ जमींदारी सिस्टम इत्यादि का। Green revolution was about increasing production of food grains using HYV variety seeds. तो high yield variety seeds का इस्तेमाल करते हुए प्रोडक्शन को इंक्रीज करने की कोशिश करी गई थी। दिस हैपेंड इन 1966। और मार्केटेड सरप्लस क्या होता है? इट इज दैट पोर्शन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस सोल्ड इन द मार्केट। तो आपको आते हैं तो आप बहुत इजीली इसको अपना चॉइस करिए और आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन जहाँ पर आपको थोड़ा सा डाउट रहता है, तो जैसा मैंने आपको बताया कि आप जिनको लेके आप श्योर हैं पहले आप उनको करिए और फिर बैकवर्ड आप कॉम्बिनेशंस को ट्राई करते रहिए। तो दिस इज अबाउट मैच द फॉलोइंग। इस तरह के आपको काफ़ी क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्योंकि ये एक ही शॉट में ना आपकी काफ़ी नॉलेज को टेस्ट कर लेते हैं। लेकिन ये भी है कि अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से पता है तो आपको पता ही होगा, लाइक्लीहुड है। और अगर आपको नहीं पता तो आपके पास अब एक्स्ट्रा क्वेश्चंस तो हैं ही, ठीक है, आप आगे बढ़ सकते हैं उसको लेके। अब ये है जो मैंने आपको बताया था फिल इन दी ब्लैंक्स। सो कुछ आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे तो आपको उसमें से राइट वर्ड चूज करना है। अब ये कहता है द ग्रोथ ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट एज अ परसेंटेज ऑफ फिस्कल डेफिसिट पॉइंट्स टू डिटीरिएशन इन द क्वालिटी ऑफ। अब हम सब चीजों को देखना चाहेंगे। ऑब्वियसली इसका आंसर है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो मैं तो यही कहूँगी कि आप उसको फिलहाल छोड़ के आगे बढ़ जाइए। और अगर आप प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन से भी इसको कर सकते हैं कि आपको समझ आता हो अगर कि रेवेन्यू डेफिसिट का क्या कैसे अराइज होता है और जो फिस्कल डेफिसिट होता है उसका क्या रोल होता है और जो गवर्नमेंट जैसे ऑपरेट करती है उसको किस तरह से अपने एक्सपेंसेस को फंडिंग करनी होती है। तो जब भी कोई गवर्नमेंट अगर बहुत ज़्यादा रेवेन्यू डेफिसिट यानी कि अपनी इमीडिएट कंजम्पशन को सपोर्ट करने के लिए बोरोइंग्स करने लग जाए, इट इज़ अ वेरी अनहेल्दी साइन। तो उस केस में हम ऑटोमेटिकली हम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पॉइंट्स टू डिटीरिएशन इन द क्वालिटी ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इन्वॉल्विंग लोअर कैपिटल फॉर्मेशन। यानी कि आपकी जो नॉर्मली जो गवर्नमेंट जब बोरोइंग्स करती है उसका पर्पस होता है एसेट फॉर्मेशन, कैपिटल फॉर्मेशन। लेकिन अगर वो उस पैसे को अपनी इमीडिएट कंजम्पशन नीड्स में ले जा रही है यानी कि रेवेन्यू डेफिसिट को पूरा कर रही है, तो वो गवर्नमेंट के मैकेनिज्म को क्वेश्चन कर सकती है चीज़, और वो आगे आने वाले समय के लिए डेंजरस होगी फॉर द इकोनॉमी। मल्टीपल इश्यूज, इन्फ्लेशन और रिसेशन, तमाम तरह की हो सकती हैं। तो हमारा आंसर इसमें रहेगा 1। अब इस क्वेश्चन में आपको डबल फिल इन दी ब्लैंक्स है। गिवन द कंजम्पशन फंक्शन ऑफ द इकोनॉमी, बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको एक इक्वेशन दी गई है जिसमें कंजम्पशन इज एक्सप्रेस्ड एज अ फंक्शन ऑफ 100 crores plus 0.8 y. So y is of course the level of income.
और आपको क्वेश्चन में ही मेंशन किया गया था इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इज 800 crores. So आपको जो values of the two components of the consumption function when the economy is in equilibrium are of course. So these are the two components. आपको सिर्फ इसमें substitute करना है 800 को इसके अंदर and get the correct option. So it will be the first one that will be the correct option. 0.8 multiplied by 800 would give us 640 crores. So जल्दी में ना रहें और ये वाला ऑप्शन ना चूज कर लें, ना कोई और ऑप्शन को चूज कर लें. आपसे ये दो कंपोनेंट्स के बारे में पूछा जा रहा है, वही वैल्यूज आपको इसमें डालनी है. तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है. मूविंग टू द नेक्स्ट, ये जो मैंने आपको बताया स्टेटमेंट क्वेश्चंस. सो एक में आप ये देखो कि ये दोनों थोड़े से अलग अलग किस्म के स्टेटमेंट क्वेश्चंस हैं. जो पहला है उसमें असर्शन है और एक रीजन है, यानी कि इफेक्टिव डिमांड मैनिफेस्ट इटसेल्फ इन द स्पेंडिंग ऑफ इनकम. और उसका जो रीजन दिया जा रहा है कि भाई क्यों इफेक्टिव डिमांड जब होती है तो उसका क्या आउटकम होता है, स्पेंडिंग ऑफ इनकम होती है. तो उसका रीजन जो दिया जा रहा है इस क्वेश्चन में वो है इफेक्टिव डिमांड कंसिस्ट्स ऑफ डिजायर फॉर प्रोडक्ट एंड रिसोर्सेज टू परचेज द प्रोडक्ट. यानी कि इफेक्टिव डिमांड के जो स्पेंडिंग ऑफ इनकम होती है उसके पीछे जो कारण होता है वो ये होता है कि उस प्रोडक्ट के लिए डिजायर होती है, और मतलब डिजायर एज इन विलिंगनेस होती है, एंड रिसोर्सेज टू परचेज द प्रोडक्ट. आपकी खाली विलिंगनेस से कुछ नहीं होता है, यू ऑट टू हैव द रिसोर्सेज टू परचेज दैट प्रोडक्ट ऑल्सो. तो अगर किसी ने भी अच्छे से ये चैप्टर को पढ़ा हुआ होगा तो वो इजीली समझ जाएगा कि इट इज यस द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द assertion, I mean the right rationale or the reason. So in the light of the above statements we will choose the most appropriate option. तो अब हम ध्यान से देखते हैं कि ये क्या कह रहा है. Both A and R are correct and R is the correct explanation of A. दूसरा, both A and R are correct but R is not the correct explanation of A. तीसरा, A is correct but R is not correct. चौथा, A is not correct but R is correct. तो हम जैसा कि डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं, इसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन होगा both A and R are correct and R is the correct explanation of A. So हम इसको ओके करेंगे फर्स्ट ऑप्शन को यहाँ पर. अब ये आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. ये दो आपको स्टेटमेंट्स दी गई हैं. For every 100 persons, about 35 are workers in India. Statement 2, compared to females, more males are found to be working. The difference in participation rates is very large in urban areas. In the light of the above statements, choose the most appropriate option. अब ये इसमें आपको असर्शन और रीजन वाला लॉजिक नहीं देना है. यहाँ पे आपसे स्टैंड अलोन है ये दोनों स्टेटमेंट्स, और आपसे पूछा जा रहा है इन चार में से कौन सा ऑप्शन आपको लगता है सही है. पहला कहता है बोथ 1 and 2 आर ट्रू. दूसरा कहता है बोथ 1 and 2 आर फॉल्स. तीसरा कहता है 1 is true but 2 is false. चौथा कहता है 1 is false but 2 is true. So obviously अगर आप देखें कि फॉर एवरी 100 persons about 35 आर वर्कर्स इन इंडिया, ये अपने आप में एक करेक्ट स्टेटमेंट है. तो मे भी कई बार हो सकता है कि डेटा हमारे को ना याद हो, तो आप बहुत केयरफुल रहें. इन दैट केस आप वो क्वेश्चन या तो रिव्यू पे रख दें फिलहाल, और या फिर आप उसको ना करें, क्योंकि आपके पास 10 क्वेश्चंस का लेवरेज है. तो आई वुड सजेस्ट कि जब तक आप बिल्कुल श्योर ना हो अपने आंसर को लेके, आप उसको ना अटेम्प्ट करिए, और अटेम्प्ट करें भी तो आप उसको रिव्यू पे रखें, सो दैट जब बाद में आपके पास टाइम हो तो आप उसको आके सोच सकें, नहीं तो आप कुछ और कर लें. तो यहाँ पर बोथ 1 and 2 आर ट्रू.
तो इस तरह के स्टेटमेंट क्वेश्चंस रहेंगे जो आपको आ सकते हैं। उसके बाद ये जो मैंने आपको बताया था क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चंस। सो चूज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। India's first official census, opening of the Suez Canal, introduction of railways in India, Green Revolution, setting up of the Planning Commission. So इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है आई थिंक सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज हुआ था इंडिया में, काफ़ी पहले की और पुरानी बात है ये। और अच्छा, और एक जो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है इस क्वेश्चन में कि हो सकता है आपको सारे सीक्वेंस याद ना हो, आपको लेट मी से कि आपको कोई एक चीज़ याद आ रही है, कि जैसे आपको याद आ रहा है कि सेटिंग अप ऑफ द प्लानिंग कमीशन कब हुई थी, ये आपको याद है। आपको ग्रीन रेवोल्यूशन याद आ रहा है, आपको ग्रीन रेवोल्यूशन याद आ रहा है कि वो लगभग 1966 था, और ये प्लानिंग कमीशन था ये 1950 में हुआ था। और रफली आप सोचते हैं कि भाई इनमें से कोई भी उसके बाद नहीं हुआ। इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज, ओपनिंग ऑफ द सुएज कैनाल, इंडियाज फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस, आपको लगता है वो तो शायद पहले हो गए थे, लेकिन लास्ट में शायद ये सब हुए थे। तो आप इस सीक्वेंस में भी एलिमिनेशन देख सकते हैं कि हम देखते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन कहाँ कहाँ पर ग्रीन रेवोल्यूशन आ रहा है। यहाँ पे एक ऑप्शन आपको 2 का दिख रहा है, और आपको फोर्थ ऑप्शन जो दिख रहा है दोनों में डी दिख रहा है लास्ट में। तो हम ये कर सकते हैं कि हम बाकी ऑप्शंस को हटा देते हैं अपने कैलकुलेशन में से, अब हम इन ऑप्शंस पे वर्क करेंगे। और हम देख रहे हैं कि सेटिंग अप ऑफ द प्लानिंग कमीशन, यानी कि ई अगर 1950 में हुआ था, तो अरे हाँ, तो ये यहाँ पर हम फिर से आके अटक रहे हैं। यहाँ पर ये दोनों ई डी और ई डी हैं। तो हमें जब तक कि हम बाकी 3 चीज़ों को लेके श्योर ना हो, तो आप ये क्वेश्चन को ना अटेम्प्ट करें, और अगर करें तो आप यहाँ से एलिमिनेशन कर सकते हैं, इन 2 से देख सकते हैं। तो हम पहले वाले को देख लेते हैं कि ये सबसे पहले कह रहा है सी, दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज इन इंडिया। ये बात मैंने आपको बताई कि इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज जो है वो सबसे पहली चीज़ है, और ये दोनों चीज़ें उसके बीच में हुई हैं, ओपनिंग ऑफ द सुएज कैनाल एंड इंडियाज फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस। तो इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज इज समवेयर अराउंड 1853। तो हमारा ये है कि ये वाला ऑप्शन सबसे वाइबल ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ओपनिंग ऑफ द सुएज कैनाल एंड देन द इंडियाज फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस। तो हम ये वाला ऑप्शन इसमें चूज कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। और अगर आपको देखिए आता हो तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चंस को करने में। उसके बाद ये गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। देखिए क्वेश्चन क्या रिपीट हो गया, सॉरी, इसको हम स्किप कर लेते हैं। तो क्रोनोलॉजी के बाद जो हमारे पास क्वेश्चंस आ रहे हैं वो हैं केस बेस्ड क्वेश्चंस, जो मैंने आपको बताया था कि आपको क्लब ऑफ क्वेश्चंस आएगा। तो इसमें आप देखिए कि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपको दी जा रही है, पूरी डिटेल दी जा रही है। जैसे आप इंग्लिश में कई बार हम बोलते हैं ना, अनसीन पैसेज होता है, और फिर उसके नीचे आपको क्वेश्चंस होते हैं जो आपको उसी पैसेज से पूछे जाते हैं। ये बिल्कुल कुछ उसी प्रकार का वेरिएशन है कि आपको एक केस दिया गया है, ऑल्दो इट वुड रिलेट टू इकोनॉमिक्स और टू द वर्ल्ड ऑफ इकोनॉमिक्स, राइट। तो आपसे कुछ WTO पे, अगर आप मॉक टेस्ट देखेंगे उसमें WTO के ऊपर एक सिमिलर क्वेश्चन है, एक ये डेट मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी के ऊपर 2 सेट्स ऑफ क्वेश्चंस दिए गए हैं केस स्टडी के ऊपर। तो आप ये देख सकते हैं। तो थोड़ा सा अगर आप टाइम लेना चाहें इसे पढ़ने के लिए, तो ये बेसिकली आपको बता रहा है कि गवर्नमेंट डेट की क्या इम्पोर्टेंस होती है और कैसे उसको मैनेज किया जाना चाहिए, और वो क्या अगर वो सही से मैनेज ना किया जाए तो वो कहाँ कहाँ पर नुकसान पहुँचाता है। तो दिस इज़ अ डिटेल्ड रिपोर्ट, और वो उससे अपेंडेड अबाउट 5 क्वेश्चंस हैं। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट डेट। सो जब गवर्नमेंट का, और इस क्वेश्चन में आपको कह रहे हैं वो नॉट, ठीक है। तो क्वेश्चन के अंदर ही दिया हुआ है, ये देखिए, इम्पैक्ट्स लाइक इन्फ्लेशनरी प्रेशर, एक्सचेंज रेट इश्यूज एंड हायर टैक्सेस इन द फ्यूचर।
हम इधर आते हैं, हम देखते हैं ये क्या, रिड्यूस टैक्सेस लिखा हुआ है। सो ऑब्वियसली रिड्यूस टैक्सेस नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा नॉट में रिड्यूस टैक्सेस। सो ऑब्वियसली रिड्यूस टैक्सेस इसका इम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि ये तो क्लियरली हमारे को यहाँ पर भी, आपको कितना पता है उस सब्जेक्ट के बारे में या नहीं पता है, तो भी अगर आप अपने इस केस को अच्छे से पढ़ते हैं तो क्वेश्चंस इसी में से अराइज हो रहे हैं, तो आप यहाँ से आंसर कर सकते हैं। तो उस तरह से केस स्टडी क्वेश्चंस काफ़ी, आई वुड से, स्कोरिंग होते हैं कि आप एक चीज़ इसको पढ़ रहे हैं, आपके सामने वो कंटेंट है और उसी से रिलेटेड आपको आंसर्स, क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। सो ये रिड्यूस टैक्सेस इसका आंसर हो जाएगा। तो ये उसके साथ रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो हैं, आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव दैट द गवर्नमेंट वांट्स टू फुलफिल बाय इट्स डेट मैनेजमेंट स्ट्रेटजी। So the government seeks to borrow at low interest rates, lend internationally at lower interest rates, reduce the public investment in an economy, create inflationary pressure in an economy. तो यहाँ तो मतलब आपको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, कैसे भी आप देख ही सकते हैं कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट्स तो कोई गवर्नमेंट कम नहीं करेगी, इन्फ्लेशनरी प्रेशर तो कोई भी गवर्नमेंट नहीं बनाना चाहती है, और वो इंटरनेशनली क्यों लैंड करना चाहेगी लोअर इंटरेस्ट रेट्स पे। तो हमारा बड़ा ऑब्वियस आंसर आ जाता है, वैसे वो पैराग्राफ में भी है, टू बोरो एट लोअर इंटरेस्ट रेट्स, क्योंकि गवर्नमेंट को फिर सर्विस भी करने पड़ते हैं डेट्स। तो उसका जो बेसिक इंटेंशन हर समय रहेगा कि भाई हम सबसे कम रेट्स पे बोरो करें और अपना काम हम चलाएं। तीसरा क्वेश्चन आ जाता है, गवर्नमेंट डेट इंक्लूड्स इंटरनल डेट ओनली, एक्सटर्नल डेट ओनली, अदर बोरिंग लाइबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट लाइक पीएफ, डिपॉजिट्स एटसेट्रा, and finally it says internal as well as external debt and other borrowing liabilities of the government. So the government debt would include all these internal as well as external and other borrowing liabilities of the government. वो सब government debt के अंडर आती हैं। And finally ये पूछ रहे हैं आपसे, DMS is required in India to make more expenditure so that fiscal deficit should increase in future. कौन करना चाहेगा ऐसा? To contract current fiscal deficit and reduce it further in the future. हर सरकार की यही मंशा होती है कि फिस्कल डेफिसिट को कम किया जाए और उसको फर्दर रिड्यूस करा जाए। इस तरह की हमको डेट मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करनी है टू इम्प्रूव टैक्स कलेक्शन इन द फ्यूचर। एंड देन इट सेज ऑप्शन 1 and 3। तो आपको इसमें क्या लगता है कि सही होगा? देखो 1 and 3 मतलब कि टू मेक मोर एक्सपेंडिचर सो दैट फिस्कल डेफिसिट शुड इंक्रीज इन फ्यूचर, नो इट कांट बी। एंड टू इम्प्रूव टैक्स कलेक्शन इन द फ्यूचर, वो हो सकता है, लेकिन जो ज्यादा बड़ा जो डीएमएस का जो एक्सपेंस है, जो उसका जो ऑपरेशन का जो पर्पस है, वो खाली टैक्स कलेक्शन नहीं हो सकता है, उसका पर्पस ज़्यादा बड़ा होता है। एंड वो है कि कैसे हम अपने फिस्कल डेफिसिट को कम करें और लगातार हम उसको कम करते रहें। तो ये तो सारे क्वेश्चंस हैं जो मैंने एनटीए की साइट से उठाए हैं, और ये मैंने यहाँ पर, मतलब मेरा ये स्लाइड पीपीटी तो ख़त्म होता है यहाँ पे, और ये मेरा लास्ट स्लाइड है विच सेज थैंक यू फॉर योर पेशेंस। और ये लिंक जो है टेलीग्राम ग्रुप का है, जो आई थिंक जो एडमिन है यहाँ से DSW से, उन्होंने आपके साथ पहले भी शेयर किया होगा। आप सब लोग इस लिंक को ज्वाइन करके उस टेलीग्राम ग्रुप पे जा सकते हैं, जहाँ पर सब तरह की जो इंफॉर्मेशन है वो रेगुलरली अपडेट हो रही है, and it will keep you in the loop with regard to any developments that are taking place. So thank you so much, and over to you, Dr. Vishal. Thank you so much, ma'am. It was a very enriching session, and I am certain that it must have benefited students immensely. और मुझे लगता है कि
दोनों ही माध्यम के विद्यार्थी, चाहे वो इंग्लिश माध्यम से हो या हिंदी माध्यम से हो, उन दोनों को ही इस प्रेजेंटेशन से फायदा हुआ होगा। और मैं फिर से कहना चाहूंगा कि प्लीज अपने जो सवाल हैं, जो भी आपके प्रश्न हैं, वो चैट बॉक्स में लिखें। अभी एक प्रेजेंटेशन और है हिस्ट्री को लेकर, और हिस्ट्री में किस तरह के सवाल आएंगे, और उसके बाद मैम यही होंगी और हम जो ये क्वेश्चंस हैं आपके उनको एंटरटेन करेंगे, और जो भी आपकी क्वेरीज होंगी उनका सिलसिलेवार जवाब देंगे। सो I will like to hand over the session to Dr. Sanjeev. Dr. Sanjeev, am I audible to you? Dr. Sanjeev, am I audible? Just a sec. Yeah. Thank you, Vishal sir, and very thanks to. Sanjeev sir, you are not audible. Hello. Yes, you are audible, sir. Thank you. Yeah, but yeah, am I audible now? Yes, sir. Loud and clear, sir. हेलो जी संजीव जी, आप बिल्कुल सुनाई दे रहे हैं, बिल्कुल आवाज क्लियर आ रही है। संजीव सर, हाँ सर, बोलिए प्लीज। या works and he has various publications also. Currently, आपकी आवाज नहीं आ रही है संजीव सर। associate professor सर आवाज नहीं आ रहा है आपका एकदम भी। संजीव सर, सॉरी, वी कांट हियर यू। in the department of So, fine. Dr. Sanjeev, there is some technical glitch and he cannot join this Google Meet, and henceforth, I am the resource person for history, and and I am the coordinator too. तो कुछ तकनीकी खामियों की वजह से संजीव जी हमसे नहीं जुड़ पा रहे हैं। वो इस सेशन के कोऑर्डिनेटर थे, परंतु वो नहीं जुड़ पा रहे, इसीलिए इस सेशन का रिसोर्स पर्सन हिस्ट्री के सेशन के लिए मैं ही रिसोर्स पर्सन हूँ, और मैं और पूनम मैम मिलकर ही कोऑर्डिनेट करेंगे। तो अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा कि मैं I'm associate professor of history. I work with Delhi University. I have experience. I've been teaching from past 15 years.
I had done my master's and MPhil from Jawaharlal Nehru University Center for Historical Studies. I had done my additional MA in Critical Theory and Cultural Studies from the University of Nottingham, United Kingdom. I did my doctorate, PhD from Birmingham City University, and my specialization is Cultural History and Modern History. So that is me, Dr. Vishal Chauhan. And without further ado, I would like to start with my presentation. तो मैं अपना प्रेजेंटेशन शुरू करने जा रहा हूं और मैं कोशिश करूंगा कि मैं दोनों ही हिंदी और अंग्रेजी में बात कर पाऊं, और अगर कहीं पर ऐसा हो जहां आपको लगे कि हिंदी में शायद आपको वो बात सुननी है या जाननी है, तो प्लीज चैट बॉक्स में मुझे लिखें और मैं पूरा प्रयास करूंगा कि उसका अनुवाद मैं हिंदी में कर सकूं. So bear with me, I'm sharing my screen. Poonam ma'am, is it visible? Yes, it's visible, Dr. Vishal. Please Thank go you ahead. so much, ma'am. I'm sorry, I'm taking your help. Actually, It's my the call is- pleasure. Okay. Thank you It's so my much, ma'am. pleasure. Right, thank you so much. तो एक छोटा सा प्रेजेंटेशन है आप लोगों की सहूलियत के लिए, और कोशिश करूंगा कि आपके सारे क्वेश्चंस मैं और पूनम मैम मिलकर ले पाए. तो ये शुरुआत में ही मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ये ओरिएंटेशन कम गाइडेंस प्रोग्राम है. जैसा कि पूनम मैम ने भी बताया, ये एक मार्गदर्शन के लिए है, ये कोई कोचिंग नहीं है. ये मैं शायद मैं इस बारे में बात नहीं कर पाऊं कि सवालों की किस प्रकार के सवाल आएंगे आपके पेपर में, परंतु मैं कोशिश करूंगा कि मैं आप सवालों की प्रकृति पर हम बात कर पाए कि उन सवालों का नेचर क्या होगा, व्हाट वुड बी द नेचर ऑफ दोस क्वेश्चंस, द वे पूनम मैम हैड डन. सो I would like to start with a quote by a famous historian, E.H. Carr, and he said, "History is a continuous dialogue between the past and the present." तो E.H. Carr एक महान इतिहासकार रहे हैं, और उन्होंने कहा था इतिहास के विषय में कि इतिहास जो है वो भूत और वर्तमान के बीच में लगातार संवाद है. तो वो जो संवाद है, उसी संवाद को हम इतिहास का नाम देते हैं. और इसी के चारों तरफ, इसी कथन के चारों तरफ हमारा ये डिस्कशन, ये हमारा जो डेलिब्रेशन है, ये मूव करेगा. तो सबसे पहले हम CUCET के पूरे किस तरह का ये एक एग्जाम है, इसके बारे में बात कर लेते हैं. तो जैसा कि पूनम मैम ने भी बताया, you will have a choice of language, so your instructions will be in the language of your choice. तो आपको जो भी प्रश्न पत्र मिलेगा वो उसी भाषा में मिलेगा जो आपने चुनी है. प्रश्न पत्र, ये जो पूरा एग्जाम है उसकी जो अवधि है वो 45 मिनट है. तो you need to attempt all the questions in stipulated 45 minutes. The number of questions will be 50, and interestingly you need to attempt only 40 questions. तो 50 सवाल आपके प्रश्न पत्र में होंगे और उनमें से आपको सिर्फ 40 का ही उत्तर देना है. तो वो जो 10 क्वेश्चन है, वो उन 10 प्रश्नों का जो क्वेश्चन है वो आपके पास है. जो आपको सवाल जटिल लगे या जिन सवालों के बारे में आप निश्चित नहीं हैं, आप ऐसे 10 सवालों को छोड़ सकते हैं. चूंकि 40 प्रश्नों का ही उत्तर आपको देना है, henceforth the maximum marks is 40 into 5. So every question carries 5 marks, and therefore the maximum marks is 200. 40 सवाल है, 5 अंक का हर एक प्रश्न है. तो अगर आपने 40 प्रश्नों के
सही जवाब दिए तो आपको आपके कुल प्राप्तांक जो हैं वो 200 होंगे और हर सही उत्तर के लिए आपको 5 अंक दिए जाएंगे। ऑन द कॉन्ट्ररी, this exam has a negative marking, which means if you mark anything, if you mark any question wrong, if your answer is incorrect, then there is a penalty of 1 mark. यहां पर ऋणात्मक मार्किंग है, जिसका अभिप्राय यह है कि अगर आप किसी सवाल का सही जवाब देते हैं तो आपको 5 अंक प्राप्त होंगे, परंतु अगर आपने किसी सवाल का गलत जवाब दिया है तो आपके सही प्राप्तांक में से 1 नंबर कम हो जाएगा, या यूं कहें कि जो सवाल आप गलत करेंगे उसके लिए आपको -1 अंक दिया जाएगा। और आखिरी में अगर आपने सवाल छोड़ दिए हैं, अगर आपने सवाल अटेंड नहीं किए हैं, तो ऐसे में कोई मार्क नहीं काटा जाएगा और ना ही कोई आपको अंक प्रदान किया जाएगा। सो अनअटेंडेड क्वेश्चंस will have no marks, right? Now, as Poonam ma'am also has said, the syllabus for this exam is verbatim, is actually same, right? Same to same as NCRT. So there is no it is absolutely, it's a mirror image of NCRT syllabus. तो वो सारे विद्यार्थी जिन्होंने एनसीईआरटी या सीबीएसई बोर्ड से अपना +2 किया है, उनके लिए ये एक बहुत ही उम्दा मौका है, क्योंकि यहाँ पर उनका सिलेबस और CUCET का सिलेबस एकदम समान है, राइट? सो दिस इज समथिंग very wonderful that NCERT and CUET syllabus is same. उसी तरह से अगर आपने CBSE से पढ़ाई नहीं की है और अगर आपने किसी और बोर्ड से भी पढ़ाई की है, तो भी बड़े स्तर पर समानताएं हैं CUET के सिलेबस में और एनसीईआरटी और आपके 12वीं कक्षा के सिलेबस में। जैसे कि ये एनसीईआरटी का यूनिट 13 है और ये CUCET का यूनिट 13 है, और ये आप देख रहे हैं कि ये अक्षरश समान है। तो मेरे कहने का अभिप्राय यहां पर ये है कि आपको एकदम भी कुछ और नया नहीं पढ़ना है। जो आपने पढ़ा है उसी में से सवाल पूछे जाएंगे। And there is an interesting thing about this CUCET as far as DU aspirants are concerned. Let me tell you a very interesting thing, that you know the best about this exam because you will have an early bird advantage. Nobody knows better than you. Or let me put it other way, that nobody knows anything about this exam so far. Hence, whatever you have done will be of a great credit. जो भी आपने अभी तक पढ़ा है अपने 12वीं कक्षा में, वो लगभग वही उसी सिलेबस से सवाल पूछे जाएंगे। तो ये वेबसाइट दोनों मैंने दी हुई हैं अपने प्रेजेंटेशन में, cbseacademic.nic.in, और इसी तरह से CUET की जो समर्थ की जो वेबसाइट है वो भी यहाँ पर है। और ये दोनों ही बिल्कुल ये एनसीईआरटी और CUCET में के जो सिलेबस है वो एकदम समान है, परंतु जो बाकी के बोर्ड्स हैं उनमें और CUCET के सिलेबस में भी काफी समानताएं हैं। इसीलिए आपको एकदम भी नहीं घबराना है। जो आपने पढ़ा है सवाल उसी में से आएंगे। Now, what is expected in this test? We all know that there will be MCQs, right? And to my understanding, there are 4
areas of concern. There would be objective questions, there would be match the followings, there would be comprehensions, and there would be assertion and reasoning. तो ये जानना जरूरी है कि किस प्रकार के सवाल आएंगे। हाँ, हम सबको पता है कि ये जो एग्जाम है, ये जो हमारी परीक्षा है, इसके अंदर वैकल्पिक सवाल होंगे। तो वो जो वैकल्पिक सवाल होंगे वो किस तरह के होंगे? तो पहले तो जो सरल वैकल्पिक सवाल होंगे जिनमें कि अक्सर कुछ विकल्प दिए होते हैं और आपको उनमें से सबसे ज्यादा सही विकल्प को चुनना होता है। दूसरा, आपको अक्सर 2 कॉलम्स दे दिए जाते हैं और उनके अंदर अगर हम इतिहास की बात करें तो हो सकता है तारीखें हों, और अगर दूसरे कॉलम के अंदर कुछ घटनाएं हों और आपको उन तारीखों को उन घटनाओं से मिलाना होगा। इसी तरह से कॉम्प्रिहेंशन, आपको एक कॉम्प्रिहेंशन दिया जाएगा, आपको एक बड़ा या एक छोटा एक प्रसंग दिया जाएगा और वो जो आपके पास एक पैराग्राफ होगा उसी के आधार पर, उसी अनुच्छेद के आधार पर, वो जो अनुच्छेद है उसी के आधार पर कुछ प्रश्न होंगे और उन प्रश्नों का आपको जवाब देना होगा। और जो चौथे तरह का जो सवाल है वो असर्शन और रीजनिंग, मतलब कि एक अभिकथन होगा और एक उसका कारण होगा। एक अभिकथन और कारण के बीच में क्या संबंध है या नहीं, उसके बारे में सवाल होंगे। ये एक सीबीएसई के सैंपल क्वेश्चन पेपर से, जो कि सीबीएसई एनसीईआरटी 12वीं कक्षा के चैप्टर 13 सोर्स नंबर 4 पेज नंबर 358 से लिया गया ये एक अनुच्छेद है। और ये जो अनुच्छेद है ये कलेक्टेड वर्क्स ऑफ गांधी जो है उससे लिया गया है। और ये जो अनुच्छेद है ये अंग्रेजी में है, इसका हिंदी रूपांतरण मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाने वाला हूं, तो जो हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं वो एकदम भी ना घबराएं। तो ये एक अनुच्छेद है और इसके आधार पर 3-4 तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। और ये अनुच्छेद जो है वो गांधी जी की एक स्पीच का एक छोटा सा भाग है और वो उन्होंने कहा कि जब वो साबरमती से चले दांडी होते हुए और नमक कानून तोड़ने के लिए, तो उस संदर्भ में ये एक पैराग्राफ दिया गया है। ये उनकी छोटी सी स्पीच है, आप इसको पढ़ सकते हैं। ये जो चैप्टर नंबर है, पेज नंबर है, ये उसमें दिया हुआ है। इसी का हिंदी रूपांतरण ये है। और यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि इस तरह का आपको एक अनुच्छेद दिया जाएगा या आ सकता है और उस अनुच्छेद में से 4 तरह के प्रश्न बन सकते हैं, राइट? सो द फर्स्ट काइंड ऑफ क्वेश्चन वुड बी अ सिंपल application based multiple choice question, which are very easy in nature, but at times you need to apply your knowledge. For example, the Dandi march started from Delhi, Meerut, Bardoli and Ahmedabad. There are 4 options, and if we go to the earlier slide, none of these cities are mentioned. अगर हम ये पहले वाली स्लाइड को देखें जिस पर कि ये प्रश्न आधारित है, तो हमें पता चलेगा कि इस प्रकार का इन शहरों का नाम इन शहरों का नाम ही नहीं है इस पैराग्राफ में। तो क्या ये सवाल गलत है? नहीं, ये सवाल गलत इसलिए नहीं है क्योंकि जो दांडी है, जो विलेज दांडी है, वो अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है और इसलिए एक एप्लीकेशन बेस्ड सवाल है। आप ही की किताब से, आप ही के सैंपल पेपर से लिया गया है और इसीलिए इसका जो जवाब है वो अहमदाबाद होगा, राइट? अब इसी तरह से अगर हम दूसरा सवाल देखें, व्हाई वाज गांधी जी सर्टेन दैट ही वुड नॉट बी अलाउड टू रीच दांडी? ऑप्शन 1, ब्रिटिश माइट अरेस्ट हिम ऑन द वे. ऑप्शन 2, ब्रिटिश माइट impose Rowlatt Act on him. Third, British deport him back to South Africa. All the above. Now the point is that ये जो सवाल है कि गांधी जी को ये
गांधी जी इस बारे में एकदम निश्चित थे कि उन्हें दांडी नहीं पहुंचने दिया जाएगा। तो ये 4 कारण दिए गए हैं, इनमें से आपको एक चुनना है, और ये तीनों जो कारण है वो भी हो सकते हैं जो चौथा ऑप्शन है, परंतु यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो ये है कि गांधी जी को ये डर था कि उन्हें रास्ते में ही अरेस्ट कर लिया जाएगा। और ये जो बात है, ये यहाँ पर इस पैराग्राफ में, इनकी स्पीच में लिखा है कि जब मैं साबरमती में था तब भी ये अफवाह थी कि मुझे गिरफ्तार किया जा सकता है, राइट। तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन उस अनुच्छेद में डायरेक्टली इसका आंसर दिया गया है। तो इसमें इस तरह के प्रश्नों में आपको दिक्कत नहीं होगी अगर आप उसको ध्यान से पढ़ेंगे। अब ये जो सवाल है रीजन एंड असर्शन, ये इंटरेस्टिंग सवाल है, क्योंकि इसमें एक अभिकथन है। जैसे अगर हम यहाँ देखें तो इसमें लिखा है गांधी मेड सॉल्ट अ सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट। गांधी ने नमक को प्रतिरोध का एक द्योतक बना लिया, एक चिन्ह बना लिया। उसका रीजन, salt was used by Hindus and Muslims, it was used by rich and poor, and the rate of tax was very high on salt, right? तो इसका कारण ये है कि नमक जो है वो चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, चाहे अमीर हो या गरीब हो, सभी इस्तेमाल करते हैं, और जो नमक पर कर की दर थी वो काफी ज्यादा थी। तो ये एक अभिकथन है और नीचे उसका कारण दिया हुआ है, और ये बाकी ऑप्शंस हैं। बोथ A and R are correct and R is the correct explanation of A. Both A and R are correct, but R is not the correct explanation of A. A is incorrect but R is correct. R is incorrect but A is correct. तो इसमें अगर हम देखें तो ये कहता है कि दोनों A और R सही हैं, और जो R है, जो उसका कारण है, वो उस अभिकथन का सही एक्सप्लेनेशन है। और इसी प्रकार से 3 ऑप्शंस हैं। तो यहां पर हमको ये देखना होगा कि कौन सा इनमें से एप्रोप्रिएट, मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर है, राइट। और इसी तरह से अगर हम स्टेटमेंट्स की बात करें तो यहां पर कुछ स्टेटमेंट्स, यहाँ इस तरह के स्टेटमेंट्स आते हैं, जैसे कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। गांधी डिक्लेयर्ड 5th April that on 6th April he will break the salt law. He chose 6th April because on this day पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन was passed. अब ये 2 कथन है। पहला ये कि गांधी ने 5 अप्रैल को ये बताया कि वो 6 अप्रैल को नमक कानून तोड़ने वाले हैं, और दूसरा जो कथन है वो ये है कि उन्होंने 6 अप्रैल की तारीख इसलिए चुनी क्योंकि इसी दिन पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन जो है वो पास हुआ था। परंतु आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो कथन बी है, अब इसमें जो ऑप्शन है वो देखिए, ओनली ए इज करेक्ट, ओनली बी इज करेक्ट, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, नीदर ए नॉर बी इज करेक्ट। तो यहाँ पर बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर ओनली ए इज करेक्ट, राइट, बिकॉज पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन वाज नॉट पास ऑन 6th of April, right? Now these are the type of questions which might come, right? And there might be some more or different kind of questions, but usually when we talk about MCQs, such are the nature of MCQs so far, and it is available in the mock test, it is available in the sample papers of NCERT. Now these are the list of resources, and I think it is almost similar list what Poonam ma'am had shared earlier, that sample question papers are available on the CBSE website. Similarly, question bank is available at CBSE website. Now, NTA testing agency also has some of the mock tests available. And similarly, Delhi University admissions website also have information regarding the test as well as the syllabus and question paper. Now, how do we do it, right? Basically, to succeed in life, we need these 4 things. 1, relevant resources.
Second, smart strategy. Third, time management, which is the key to success. And fourth, revision. So yes, you already have gone through the syllabus by and large. Probably there might be one or two units or topics which you need to visit again or afresh. But more or less, you have already studied what will be there in the exam. तो आपने ये सब पहले से पढ़ा हुआ है. हाँ, हो सकता है कि कुछ यूनिट्स को आपको दोबारा से देखना पड़े, या जो लोग सीबीएसई बोर्ड से नहीं हैं उन्हें दोबारा से कुछ टॉपिक्स को करना पड़े, परंतु ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ एकदम नया होगा. राइट? सिलेबस अवेलेबल है डीयू की वेबसाइट पे, प्लीज उसको ध्यान से पढ़िए. एनसीईआरटी की किताबें ऑनलाइन अवेलेबल है ncrt.nic.in पर. अगर आपके पास किताबें नहीं हैं जो बाकी दूसरे बोर्ड के विद्यार्थी हैं, तो एनसीईआरटी की वेबसाइट पर ऑनलाइन किताबें उपलब्ध हैं दोनों ही माध्यम के अंदर, हिंदी और इंग्लिश और उर्दू में भी. तो आप वो किताबें डाउनलोड कर सकते हैं और इनको पढ़ सकते हैं. दूसरी चीज है स्मार्ट स्ट्रेटेजी. स्मार्ट स्ट्रेटेजी का मतलब ये है कि आप मॉक टेस्ट जो अवेलेबल हैं, जैसे कि मैम ने बताया कि 6 सर्वर हैं और उनमें से आप अलग अलग तरह के मॉक टेस्ट कर सकते हैं. तो आप ये देखिए कि किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और उसी तरह से उसी के आधार पर आप अपनी तैयारी करिए. टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको 45 मिनट के अंदर वो 40 क्वेश्चन करने हैं. तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अगर 50 क्वेश्चन पूरे देखते हैं तो 1 मिनट से कम का समय आपको लगना चाहिए उस क्वेश्चन को करने में, ताकि आप ये निश्चित कर पाएं कि आप वो क्वेश्चन करेंगे, नहीं करेंगे, छोड़ेंगे, व्हाटएवर इट इज. सो यू हैव लिटरली 40 seconds, 40 to 45 seconds to attempt your questions. So that is important. And that is a part of smart strategy. Similarly, when you talk about time management, yes, time management is important because if you don't manage time, you won't get time for revision. At times we believe that we know, and the travesty with objective type questions are most of the options appear correct. How will you do that then? So if you are sure about your readings, you can also eliminate some of the options, and it will help in selecting the most appropriate answer. Lastly, all the very best for all the very best, and I hope that you will get through Delhi University. It is one of the best universities in India and the world, and I hope to see you in the university in coming days. Thank you. So that was indeed wonderful, Dr. Vishal. Thank you, ma'am. And I think together we've been able to do some kind of justification to the two subjects. And now I would like to take up the questions from the students, if there are any. Yeah. So we can open the chat box. Apparently, there were some questions that were posted earlier. Yes, those are the questions. There's one question from Abhishek Bhundekar. Ma'am, are this material helpful for Hindi medium also? I think you answered that, ma'am. Yes, I Would did you like to answer. elaborate on that, ma'am, please? So not really, because you've also mentioned this, that most of the material has the Hindi version too. But unfortunately, the NTA site doesn't give you the Hindi medium mock test. I mean, mock test in Hindi medium. So that may be a little disappointing for students who are wanting to attempt a mock test on the site. But otherwise, if you look at the questions, I think you can gauge what exactly the question is asking.
at least it will you will be able to become aware of the pattern of questions, of the nature of questions that are asked. So maybe in times to come, because NDA site might actually be a work in progress for the mock test. So right now, maybe they are just offering it in English medium. Maybe in few days' time, you may get it in other media, other languages as well. So I can Yeah. say just that. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Then Naresh Gautam asked, ma'am, should we prepare for image-based questions as well? तो नरेश, मैं ये तो नहीं कह सकती कि मैं इसके ऊपर कोई एक 100% ऑथेंटिक जवाब दे पाऊँ, लेकिन जैसा कि मॉक टेस्ट का पैटर्न है, उसमें कहीं पर भी हमें इमेज बेस्ड क्वेश्चंस नहीं मिले। मगर ये भी सच है कि ये एग्जॉस्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस नहीं है, कोई वेरिएशन आ भी सकती है। तो मैं इसको बिल्कुल रूल आउट तो नहीं करूँगी, बट अगर हम केवल पैटर्न के बेसिस पे जाएं तो उसमें इमेज बेस्ड क्वेश्चंस हमें नहीं मिले। बट ये है कि जब आप इकोनॉमिक्स की स्टडीज़ करते हैं तो कुछ चीज़ों के फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग आपके माइंड में ज़रूर रहनी चाहिए। जैसे कि जो क्वेश्चन मैंने एक टेकअप किया था कि डिमांड बढ़ी है और साथ ही साथ सप्लाई घटी है, तो ऑब्वियसली आपके दिमाग में वो डायग्राम बनना चाहिए कि वो किस तरह से उसका जो इम्पैक्ट आएगा प्राइस पे, वो आप तभी समझ पाएंगे जब आपको क्लैरिटी होगी। उसको डायग्रामेटिकली आप बना के देखेंगे, शिफ्ट करेंगे डिमांड कर्व को और कॉन्ट्रैक्ट करेंगे सप्लाई कर्व को, तो आप ऑटोमेटिकली देख पाएंगे कि जो प्राइस है वो शार्पली राइज करेगा। तो मेंटली ज़रूर मैं कहूँगी कि आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, और जब मेंटली आपको क्लैरिटी होगी तो अगर आपको क्वेश्चन आ भी जाता है तो मुझे नहीं लगता है कि आपके लिए कोई दिक्कत होगी। तो इतना ही कहना चाहूँगी, क्योंकि अभी तक तो कोई हमें इस तरह का मॉक टेस्ट में कोई सैंपल में कहीं दिखा नहीं, तो उम्मीद है कि शायद ना हो, लेकिन मैं पूरी तरह से इसके ऊपर नहीं कुछ कहना चाहूँगी। Thank you so much, ma'am. यस, I would like to add one more thing, what you have said, too. That, see, this is, as I said in the very beginning of my presentation as well, that this is orientation cum guidance program. To be very honest, whatever we are discussing with you, it is based on the NTA mock test as well as CBSE and NCRT sample paper and question bank. So what will be there is still a very important question, and to be very honest, we cannot we cannot contribute to the answer right here because we are not supposed to. So whatever we are discussing, we are discussing which is available on the given websites, question papers and sample papers. So please bear with us because there are strict directives and we need to follow them. Thank you so much. There is one more question, ma'am. No, it's a request. Can you please share this PDF on Telegram? that I have already said that I'll Yeah. share with the ILLL and they will post it on the Telegram group. And all these presentations will be available on YouTube as well. So if you type CUCET Guidance Cum Orientation Program, you will get the link and you can revisit these presentations there. And yes, Andres J. Emmanuel has asked, ma'am, do we also have to study the content of box part given after the chapters in Macroeconomics NCRT book? So my suggestion would be that yes, because in any case, as far as it is listed in the books itself, maybe you did not really go through that content when you appeared for your 12th class, but then
the content that is given in those boxes is something, you know, which really gives you, expands the horizons of your knowledge. And in fact, I was looking at some part of the syllabus, and I found that it was mentioned in the box only. The content was mentioned, the answer was there, particularly when we were talking about the new exchange rate issues that have been coming up after the European Union. So there is a new currency, and there is a new methodology that they are following, and as a result, there has been some shuffle in the systems that different countries are adopting. So that content I found was in one of the boxes in the chapter which relates to exchange rate mechanisms. So I'd say, just to be doubly sure, to have an edge over the ordinary, I think you must not leave any stone unturned and cover every part of the book. Thank you so much, ma'am. Very well said. Thank you, ma'am. Dylan Joseph has asked, ma'am, will we be having questions based on statistics, which involves calculations? So apparently, since you are given only a minute to answer a question, which includes typing your answer and choosing the correct option and moving on to the next question, I there may be some questions which involve little bit of calculation, but I don't think there will be questions which will be very elaborate. Only basic calculations like the one I told you, one question which was there in my PPT, where we were talking about the consumption function, and in that, you know, there was a value which you had to substitute and arrive at the numerical value. So that possibly can be asked, but I otherwise do not think that you will have elaborate questions of statistics in this paper. Thank you, ma'am. Gurpreet has asked, in history, we have to also prepare map. Gurpreet, yes, we need to prepare map because there might be questions which seek your information about certain places, certain historical monuments, uh, and so on and so forth, right? So I would suggest you to prepare map as well. Don't, and as ma'am has said, and I'm quoting her again, that you should not leave any stone unturned. You never know what will be there in the paper, right? So please go through maps. And let me tell you one more thing, that if you look at your sample papers from NCRT, it contains map, certainly. So I advise strongly that please go through maps as well. Ayushi said, sir, kindly provide the link of Telegram group. Okay, fine. It will be there. Meghav Daima asked, numericals will be there in tests for economics. So Megha Daima asks, numericals will be there in tests for economics. It's the same kind of a question, ma'am. Would you like to elaborate on that, please? So, Megha, I have already been speaking a bit on this. So, don't expect long numericals. So, the kind of numerical that can be asked would be something that can be calculated in less than a minute, right? Because that is how the paper would be prepared. So, they can't expect you to solve questions which will take away major chunk of your time. So there will be numericals, but the numericals would be of a very short, I mean, they would require very little bit of your effort. None of those, elaborate questions would be asked. So that's my take on that. And that's the Telegram link that I have shared on the group. Thank you, ma'am. And Tanvi has asked, where can we find answers to the mock tests?
So, So Tanvi, so I know how to answer that, because Tanvi was attending Professor Tuteja's maths session also, and I also happened to join in the morning. right. And Tanvi, I think she had asked the same question. So apparently, even I did not know the answer to this question, to be very honest. But it was Professor Tudeja who really helped us in that by telling us that unless you attempt the entire mock test and submit it, you will not get the list of correct answers. So, and your score as well. So they give you both your score as well as the list of correct answers. So actually, you'll need to have the patience to attempt the entire paper and then submit it. So that's what is required, Tanvi. Yes, ma'am. Following his advice, I did attempt one of the mock tests, but after that, it was just submitted and I didn't get the answer to the questions. Oh, so as I said, even I got the information from Professor Tuteja, which in the previous session. So maybe we need to, the university needs to convey to the NTA officials that this is a problem that the students are facing. They are not able to, because it doesn't really make sense. You attempt the entire paper, but if you don't get to know your performance, that can be very disappointing. And in fact, it doesn't really take you anywhere. So we'll take note of this, Tanvi. We'll convey it to Professor Tuteja, and probably they can get in touch with the NTA. And just like the way, the mock test link wasn't working until 29th or so, despite being launched on 25th or 26th, I think this problem will also get resolved. We'll definitely convey it to NTA that we need this kind of. Yes, ma'am. That would be really Yeah. helpful if this can be communicated, right? Yes, Thank thank you. you. Thank you. And Thank you for pointing it out. we'll look into that, Tanvi. Your message is clear and it is noted. We'll speak to Professor Tuteja, Professor Arora, and we'll convey it to NTA ASAP. Thank you again for pointing it out. Means a lot. Means a lot. Gurpreet Singh asked if our history paper occurs in July, so the time is limited. One-time revision of the syllabus is necessary, including chapters which were not in class 12 CBSE syllabus. Gurpreet, I'm not clear what does that mean, because actually, if you look at the class 12 syllabus CBSE NCERT history, it is verbatim there in CUET. So you need not to prepare different chapters. Just prepare what is there in class 12 syllabus. That's it. राइट तो जो भी आपके सिलेबस में 12वीं कक्षा के इतिहास के एनसीईआरटी के सिलेबस में जो है उसी में से सवाल आएंगे, वही पूरा सिलेबस है। इसीलिए मैंने मेरे प्रेजेंटेशन में दिखाया था कि किस प्रकार से एकदम वर्बेटिम कॉपी है एनसीईआरटी के सिलेबस से सीयूईटी का सिलेबस, तो आपको उसमें डिफिकल्टी नहीं होगी। Shivraj has asked a peculiar question, ma'am, what happens if I attempt more than 40 questions? So, Shivraj, if you attempt more than 40 questions, then only 40 questions will be assessed. And 40, if you attempt, say, let's say, there will be space only for 40 questions, right? So you need to, there would be OMR sheet. You need to either blacken or tick right, probably. So there will be space for 40 questions only, right? So if I understand the question, I would like to repeat what Professor Tuteja said in the previous session, that Right. for all such cases, you will not be allowed to exceed 40. I mean, the palette itself will not allow you to attempt 41st question. Either you will have to delete some One. previous answer, and only then would you be allowed to move to the next question. So the minute you attempt 40 questions, I think it will not allow you to proceed further. It's a computer-based exam. So in Because computer-based exam, there is no mechanism. No, if you attempt Yes. 45 questions, how will the computer decide which 40 to choose? you cannot. Actually, So ma'am, you cannot attempt that. Yeah. Yes, that's what I'm See, saying. You will not be Once allowed. you answer 40 questions,
right or wrong, whatever, computers stop taking your responses further, right? So you can only attempt 40, right? So, Tanvi, in any case, mock test is allowing you to see all questions. Yes. No, they are not testing you in that. In any case, you are not bound by the time that you will have to follow there. So, mock test is allowing you a lot of leverage. So it can't do this that after you've seen 40 questions or attempted 40 questions, they won't allow you to see the next 10 questions. So a lot of refinements probably would happen on the day of the examination. Acha, so there is another question, as I can see, by Emmanuel. Energy in infrastructure chapter is there in the syllabus or not, because it is not mentioned in the eco syllabus given by NTA. So I'd like to clarify this and reiterate it again and again, that you have to strictly abide by the syllabus of NTA. So don't get bogged down by what is there on in NCRT or the CBSE, because apparently students from all boards would be appearing for this examination. So all of them may have different syllabi, and they may not be a true reflection of what CBSE has prescribed as part of its curriculum. So there can be certain areas where there will be no, which will not be asked. So you should only be glad that NTA has slashed some of the topics and reduced your burden. So the mantra is that you have to abide by what NTA has prescribed. That will be the bottom line, right? So whatever is there which is extra, you can easily ignore that. Who says LPG in syllabus is not in economics syllabus? No, it's very much there. If you look at the syllabus, it shows it shows economic is the state of the Indian economy from 1947 to 90, and then it says after that. So where I mentioned that the post liberalization era, that is also mentioned in the syllabus. So you will have to study that. I mean, no subject of economics can be complete without studying LPG. There are many such practice papers wherein a lump sum amount of questions are present from this topic as well. I didn't get the question. Vishal, are you able to understand what he's saying? If he can unmute himself. Oh, if Ayushi, can you unmute yourself and Can you speak? Ayushi, you can pose your question there. I guess she got it. Okay. so anyways, I think my question what I mentioned automatically answers the second part of the question. What she's trying to say is that I have found several questions from this topic, whereas the syllabus doesn't mention it. So I have corrected her that the syllabus does mention, although it doesn't say LPG in particular, but it does say after 90s, right? So it automatically means that you have to cover LPG, which was launched in 1991. And if there are questions, then that's absolutely fine, because that's very much part of the course. So there will be questions from that topic. So I think with that, I think I've answered that question. Absolutely, ma'am. So I think we have covered all So the. I like the spirit of Gurpreet. Yes, we are looking forward Yes. to Welcome you all of indeed. you. And yes, we really hope that all of you really do wonders, and we are waiting to welcome you all. Okay. So
let me offer a gratitude of thank to Dr. Poonam Sethi, who not only presented valuable information in her presentation, but also have answered all the queries amicably and with all the patience. Thank you, ma'am, for being a part of this endeavor. I thank you on the behalf of DSW, ILLL, and the organizing team. It has been a wonderful session, and I'm certain that students will immensely benefited from the sessions. Thank you so much, and all the very best to all of you. Hope to meet you soon in Delhi University. All the very best. And I would like to convey my thanks to Dr. Vishal for conducting the entire session so beautifully. And despite the technical glitch, we were able to pull it off fairly well. And of course, thank you to all the students who made it actually a very, very enriching session, because questions raised and answered properly, actually, that was the whole purpose behind this session. Right. So thank you so much and wish you all the best. And as I said, we are waiting to welcome you. Thank you, ma'am. Thank you all.